Okay, the name of the chapter we are going to revise is Force, Energy and Simple Machines. Clear? Force and energy we will revise in the next class. Today we are going to revise, first of all, we are doing simple machines. Clear? In the one line we can, we know that what is energy. We have done this in the 4th class also. Energy is the ability to do work. Ability to do work is called energy. And force, आपने videos भी देखे हैं. Force is push or pull, okay, applied on an object. Okay, you watched the videos that I have sent. अगर नहीं भी watch किया अभी today's video, तो no problem, we will revise it again in this class. First of all, simple machines. Now write down in the chat box which simple machine is you are looking at. It is also a simple machine. And what do you mean by simple machines? Simple machines are the tools, or we can say devices, which make our work easier. They make our work easier by increasing the magnitude of the force. जो हम force लगाते हैं उसका magnitude sometimes वो increase करती हैं. Some simple machines help us to work by decreasing the magnitude of force. Clear? And some help by changing the direction of force. We use these simple machines in daily life and they are the base of all other complex machines. सभी complex machines हैं वो कैसे बनती हैं? With the help of these simple machines. ये उनका base होते हैं. Excuse me, Param ma'am. By mistake, you are muted. Please unmute yourself. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, beta. Clear? Simple machines are the base of the complex machines. All complex machines like car, engine of the car, okay, vehicles, and जो बड़ी machines हैं factories में, industries में, उनका base क्या है? Simple machines. And these are 6 types. Okay, simple machines are of 6 types. We will discuss these one by one. जो आप देख रहे हो image, जो आप देख रहे हो seesaw, it is also a machine. Clear? It is also considered as simple machine. Now look at this. This is a lever. First kind of machine we are going to discuss. It is a lever. लीवर क्या होता है? दिस इज अ बार. सिंपल एक रिजिड रॉड होती है. आप जो देख रहे हो बार इज देयर इन द हैंड ऑफ अ मैन विच इज यूज्ड टू लिफ्ट अ हैवी लोड, हैवी स्टोन जिसको हम बोल्डर कहते हैं. बोल्डर वी कैन नॉट टर्न इट विद आवर हैंड्स. अगर हम इसको पिक करना चाहे, इट्स वेरी हैवी, हम इसको नहीं उठा पाएंगे. But with the help of a rod or bar, we can easily turn it. वो बार लीवर का काम कब करेगी? जब हम उसके नीचे एक सपोर्ट दे देंगे. आप जो छोटा सा स्टोन देख रहे हो, it works as fulcrum. Fulcrum means support. It helps the lever to turn around it. इसके राउंड वो टर्न कर रहा है ना, वो ऊपर फोर्स लगा रहा है और यहाँ से नीचे टर्न हो रहा है लोड. जो बोल्डर है इट एक्ट्स एज लोड. सो लीवर के 3 पॉइंट्स होते हैं, एफर्ट, फल्क्रम एंड लोड. आप सभी ध्यान से देखोगे इसमें एफर्ट कहाँ लग रहा है? एफर्ट मींस फोर्स. फोर्स मैन अप्लाई कर रहा है, वो अपना मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है. जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, पुश और पुल कर रहा है वो मैन, वो पॉइंट को हम कहते हैं एफर्ट. यहाँ पे सपोर्ट है, पॉइंट वेयर द लीवर टर्न्स अराउंड, वी कॉल इट फल्क्रम. और जो लोड है उसको हम जो बोल्डर जिसको हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टोन है, वेट है, उसको हम कहते हैं लोड. अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क मी अगेन. अगर लीवर के तीनों पॉइंट्स आपको नहीं क्लियर हुए,
जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, पुश पुल हम कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या होता है, एफर्ट। यहाँ पे लीवर टर्न होता है, सपोर्ट मिलती है लीवर को टर्न होने के लिए, उसको हम कहते हैं फल्क्रम। और जिस पॉइंट पे वेट जो हम उठा रहे हैं, काम हो रहा है हमारा, दैट पॉइंट इज नोन एज लोड। All the points are clear. Write it in the chat box if it is clear. Yes? अगर नहीं क्लियर, यू कैन आस्क मी अगेन। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा, एफर्ट, फल्क्रम एंड लोड, 3 points are there on this lever. Now look at this. Lever is of 3 types. 3 types के लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। जो आपको दिख रहा है, दिस इज द लीवर ऑफ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास का लीवर वो होता है जिसमें सेंटर में फल्क्रम, उसके एक साइड एफर्ट और दूसरी साइड लोड होता है। आपको जो पिक्चर दिख रही है उसमें क्या है, जो नीचे रेड कलर का ट्रायंगल सी दिख रही है, ये सीसॉ को ही उन्होंने दिखाया है। तो जो सेंटर में फल्क्रम है, सेंटर में प्रेजेंट है, सपोर्ट है, ओके, जिसके अराउंड लीवर टर्न होता है, दैट पॉइंट इज फल्क्रम। जब फल्क्रम सेंटर में प्रेजेंट होगा, when fulcrum is present in between the effort and load, then the lever is of first class. Okay, it's very easy to learn the kind of lever if you know this word flea, जो नीचे मैंने लिखा है ना, FLE। आप अपनी बुक के ऊपर ये लिख लो पेंसिल से, या पेन है तो पेन से भी लिख सकती हो, ऐसे ही FLE आप लिखो। ओके, राइट इट, FLE। अब F के ऊपर लिखो 1। F के ऊपर 1 मीन्स कि फर्स्ट क्लास के में जो फल्क्रम है, इट इज इन द सेंटर। आप सेंटर की पोजीशन नोट कर रहे हो। फर्स्ट क्लास लीवर, फल्क्रम इज इन द सेंटर। सेकेंड क्लास लीवर में लोड इज इन द सेंटर, L के ऊपर 2 लिख दो। एंड इन effort, when effort is in the center, lever is of third class. तो ये आपको एग्जाम में भी आता है कि you have to recognize, you have to give the examples कि whether lever is of first class, second class की third class है। तो आपको क्लियर तब होगा when you know that के where is the position of all these 3। तो आप सेंटर वाला लर्न करोगे, जब फल्क्रम सेंटर में है तो लीवर इज ऑफ फर्स्ट क्लास, लोड सेंटर में है तो लीवर इज ऑफ सेकेंड क्लास, एफर्ट सेकेंड सेंटर में है तो लीवर इज ऑफ थर्ड क्लास। अब देखो, आपको फर्स्ट क्लास लीवर समझ लग गया। फल्क्रम इज इन द सेंटर, फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। सेंटर पॉइंट आप देखोगे, लोड और एफर्ट दोनों उसके एक साइड इधर और दूसरी साइड दूसरा। Is it clear? Yes. Now see the example. This is the lever of first class because इसमें center में है fulcrum. Fulcrum is in the center. Now look at this. This is a scissor. तो सीजर के भी, ये भी फर्स्ट क्लास लीवर है। इसमें भी देखो ये सेंटर में है इसका, जो जिसके अराउंड ये टर्न होता है, जहाँ पे ये पेच लगा हुआ है ना सेंटर में, ये इसका फल्क्रम है। तो इसके अराउंड ये टर्न होती है, ये भी एक लीवर है, फर्स्ट क्लास लीवर है। तो आप देखोगे कि इस पॉइंट के अराउंड ये टर्न हो रही है, तो ये फल्क्रम है। यहाँ से हम पकड़ रहे हैं इसको, पुश और पुल कर रहे हैं, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एफर्ट। यहाँ पे हम प्रेस कर रहे हैं इसको, पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज एफर्ट। सेंटर पॉइंट जिसके अराउंड ये टर्न हो रही है फल्क्रम, यहाँ पे काम होता है, जहाँ पे हम कुछ कटिंग करते हैं, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड लोड। क्लियर? यहाँ पे हमारा काम हो रहा है, तो लोड, फल्क्रम, एफर्ट। सीजर इज ऑल्सो फर्स्ट क्लास लीवर, जो आपको इमेज दिख रहा है पिक में, आप देख रहे हो प्लायर, इट इज ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। तो इसमें भी जिस
पॉइंट के अराउंड ये टर्न होता है फल्क्रम है, जिस पॉइंट पे काम होता है हमारा लोड और यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, दैट इज एफर्ट. When fulcrum is present in between load and effort, the lever is of first class. Now you will see the other examples also. Which are the other examples of first class lever? जब आप next class में आओगे, next Monday, तो you will keep 1 or 2 simple machines with you. तो आप मुझे बताओगे कि I have this. किसी का भी मैं नेम ले सकती हूँ. You have to tell me, you have to show me, and you will describe कि this is fulcrum, this is load, and this is effort, and it is of this kind of this type of this class of lever. Okay? अगर नहीं समझ लगा तो you can ask me now. Now second class lever. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, can you explain hammer? हैमर में भी आप देखोगे सपोर्ट जो है, जहाँ पे जो आयरन पार्ट है वो वुडन पार्ट को साथ अटैच होता है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है. ओके, दैट पार्ट इज फल्क्रम. यहाँ पे हम नेल बाहर निकालते हैं, दैट पार्ट यहाँ पे हम काम हमारा होता है, दैट इज लोड. यहाँ से हम पकड़ते हैं उसको, दैट इज एफर्ट. क्लियर? तो दिस वे यू हैव टू वॉच, यू हैव टू सी केयरफुली के जो आप मशीन सिंपल मशीन्स यूज कर रहे हो उसमें अगर लीवर है वो तो किस टाइप का है. अगर आपको कोई नहीं समझ लगता, यू कैन आस्क मी. इन द सेकेंड क्लास लीवर, लोड इज बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम. क्लियर? अब देखो, नट क्रैकर इज गिवन. नट क्रैकर में यहाँ पे नट जो है क्रैक हो रहा है, तो वो पार्ट हमारा लोड है. we apply force, that is effort, and जिस पॉइंट पे ये टर्न कर रहा है, जहां इसको सपोर्ट मिल रही है, that is called fulcrum. Clear? So this is second class lever. Second class lever is the class where load is present in between the fulcrum and the effort. Okay, beta? Now next comes the third class lever. In third class lever हमने E के ऊपर 3 लिखा था, तो third class lever में effort is present in between the fulcrum and load. Okay, जो आपको red color का point दिख रहा है, वहां पे वो lever turn हो रहा है. जिस point पे वो turn होता है, that point is fulcrum. Support को fulcrum कहते हैं. जहाँ पे हम पुश, जहाँ पुल करते हैं, फोर्स लगाते हैं, दैट इज एफर्ट. और जहाँ काम हो रहा है, और वी कैन से द वेट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड. ओके, जैसे हमने बोल्डर को उठाने में फोर्स लगाया था, तो वो वेट था जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे थे टू टर्न इट. दैट पॉइंट इज कॉल्ड लोड. व्हेन एफर्ट इज प्रेजेंट बिटवीन फल्क्रम एंड लोड, लीवर इज ऑफ थर्ड क्लास. Now see one example. Ice stones. Clear? When we pick the piece of ice, cube of ice, तो we press it in the center. जिस point पे ये turn होता है, ये एक side है, center में effort है, और load at other end. So ice stones is an example of third class lever. ऐसे आपका आ जाता है stapler. एंड ऐसे आपका आ जाता है फोर्सेप्स. क्लियर? ट्वीजर्स, तो चिमटा जिसके साथ आप कोई चीज भी उठाते हो, दैट इज कॉल्ड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्ड क्लास लीवर. वी कैन से चिमटा. मैम, यस मैम फिशिंग रॉड कैसे मैम आया उसमें थर्ड क्लास लीवर में? फिशिंग रॉड में अगर आप बुक में पिक्चर देखोगे तो यहाँ पे फल्क्रम है. फल्क्रम उसका पॉइंट वहां पे है जहाँ उसको सपोर्ट मिलती है. क्लियर? जहाँ से हमने पकड़ा हुआ है, हम वहां पे फोर्स नहीं लगा रहे, जस्ट हम उसको एक सपोर्ट दे रहे हैं. उसको पकड़ के हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं. क्लियर? यहाँ पे हम उसको रोल कर रहे हैं ऐसे, वहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं. जहाँ फोर्स लगा रहे हैं, इट मीन्स एफर्ट. तो फोर्स हम लगाते थोड़ा ऊपर,
पकड़ते हम नीचे से हैं, जहां से हमने पकड़ा वो सपोर्ट हो गई, क्लियर। और यहाँ पे हमने उसको ऐसे टर्न किया, वो एफर्ट है। जब एफर्ट सेकंड सेंटर में आ गया तो थर्ड क्लास लीवर। जो फिश है जहां से हमने पकड़ी वो हमारा वर्क डन हुआ है वहां पे, उस पॉइंट पे, तो लोड है वहां पर, क्लियर। व्हेन एफर्ट इज इन द सेंटर, लीवर इज ऑफ थर्ड क्लास। ओके बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम अगर हम लोग लीवर के एग्जांपल लेना चाहे तो मैम हम लोग कार के गियर बॉक्स की ले सकते हैं मैम। उसका वो जो गियर होता है जिससे उसकी ऐसे वो चेंज किया जाता है। यू कैन ओके। आप स्पून से खाना खाते हो, आप उसकी भी एग्जांपल ले सकते हो, ब्रूम की एग्जांपल ले सकते हो। ओके तो you should be clear, you should know that which type of liver is this. If you are clear then only write that example, otherwise अगर आपको कोई doubt है तो that don't go for that. Clear? It should be clear that कि हम force कहाँ लगाते हैं, काम कहाँ हो रहा है और support कहाँ मिल रही है उसको। तीनों points आपको clear होने चाहिए। Now next, these are some other examples of third class liver. फिशिंग रॉड इज देयर, जहां से हमने पकड़ा वो फल्क्रम, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया एफर्ट, और जहाँ पे फिश पकड़ी गई दैट पॉइंट इज लोड, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज स्टेपलर, इट इज ऑल्सो थर्ड क्लास लीवर बिकॉज यहाँ पे पिन लगती है, दैट इज द पॉइंट वेयर वी डू द वर्क, लोड इज देयर। यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको स्लाइटली उसके पीछे से पकड़ते हैं, फोर्स लगाते हैं एफर्ट, और जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये टर्न होता है दैट इज फल्क्रम, द पॉइंट वेयर सपोर्ट इज देयर, द पॉइंट वेयर the lever turns around, the point around which the lever turns is called fulcrum. Now next is मैम। yes, जब हम स्टेपलर को करते हैं मैम तो उसके ऊपर भी फोर्स लगता है और नीचे भी फोर्स लगता है मैम, तो नीचे भी एफर्ट आएगा दोनों पॉइंट पे। आप ऊपर भी जहाँ ऊपर लिख दो, जहाँ नीचे लिख दो, एनी वन साइड। मैम बुक पे दोनों तरफ लिखा हुआ है। दोनों तरफ भी लिख सकते हो, अगर आप एक तरफ लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने उसको थोड़ा सेंटर में ही बताना है, क्लियर। नाउ रिकॉग्नाइज दिस पिक्चर, व्हाट इज दिस, यू हैव सीन दिस। ये आजकल कॉमन तो नहीं है, बट अगर आप हवेली जाते हो तो हवेली के बाहर ये बना हुआ है। ओके, दिस इज अ वेल, एंड वेल के ऊपर क्या है, अ पुली। पुली इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन, क्लियर। इट मेक्स, पुली भी क्या होती है, इसमें भी एक जो है व्हील होता है। अब मैं आपको शो करूंगी स्क्रीन पे। यस बेटा। नेक्स्ट इज पुली। यू कैन सी कि पुली में भी जब हम एफर्ट लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो इट मेक्स अवर वर्क इजी बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब देखो लोड की डायरेक्शन ऊपर को है और जो मैन इसको पुल कर रहा है इसकी और डायरेक्शन है, क्लियर। सो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, pulley helps us to make our work easier. Okay, we require less effort to pick a heavy load. पुली की हेल्प से हम, अगर आप कुएं से सीधा पानी की बकेट को निकालोगे तो आपको बहुत हैवी लगेगी, अगर वो पुली के राउंड टर्न होके आ रही है देन यू फील इट इजी टू टेक इट आउट, क्लियर। Pulley makes our work easy. It is also it is type of a wheel and axle. इसमें भी एक व्हील लगा हुआ है, साथ में रॉड लगी हुई है, तो ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हील एंड एक्सिल, and it makes our work easy by changing the direction of the force. Excuse me ma'am. Two examples where we use the pulley. Yes बेटा बोलिए। मैम ये जो एग्जांपल है पुली मैम, इसे हम फर्स्ट क्लास लीवर में भी ले सकते हैं। यस, बट नहीं, लीवर में नहीं लेंगे हम, लीवर इसको हम लेंगे पुली में, ये एक और तरह की मशीन है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट क्लास ही बनेगा अगर हम लीवर की बात करें, बट इट इज अनदर काइंड ऑफ
simple machine. Clear? Okay, ma'am. Yes. So now give two examples where pulley is used. Have you ever seen pulley to be where you have seen it working in your house, in the school, or somewhere else? एक तो हमने देखा कि it is used to draw the water from the well. Well से पानी निकालने के लिए यूज होती है. And आपने कभी क्रेन देखी है? क्रेन्स, उसके आर्म के एंड पे पुली लगी होती है. That is used to pick the loads. जो स्क्रैप में से वो आयरन की चीजें उठाते हैं. ओके, कुछ हैवी लोड्स उठाते हैं. जहाँ बड़े मॉल्स में बड़ी बड़ी मशीन, उन्होंने सामान उठाना होता है, बॉक्सेस उठाने होते हैं, जो क्रेन्स यूज होती हैं लिफ्ट करने के लिए, उसके आर्म के ऊपर भी पुली लगी होती है. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फ्लैग पोल. फ्लैग की जो पोल है, पोल के एंड पे पुली होती है विच हेल्प्स टू अनफर्ल द फ्लैग. एंड क्लोथ्स लाइन, जहाँ पे आप कर्टन्स लगाते हो, वहां पे भी पुली लगी होती है. नॉट इन ऑल केसेस, but it may be there. Next is wheel and axle. Clear? This is also a simple machine which makes the work easier. Okay, a rod is attached to the wheel. When one rod moves, so it moves the other wheels, all the wheels which are attached to it. So एक रॉड को मूव करने से देखो, all the three wheels they are moving. This is also a simple machine. Vehicle जो हमारे बाइक्स हैं, उनके wheels हैं, they are the example of wheel and axle. तो another example of wheel and axle is gear. इसको हम गियर कहते हैं, जो हमारे टेबल क्लॉक्स में और वॉच में लगा होता है. गियर क्या है? ये भी एक व्हील होता है, बट इट हैज टीथ. आप जो इसके टीथ देख रहे हो, वन टीथ फिट्स इनटू अनदर. दो टीथ के बीच में गैप है और उसमें एक और टीथ फिट होता है. व्हेन वन गियर मूव्स, तो इट ऑटोमेटिकली मूव्स द अदर गियर्स अटैच्ड टू इट. तो दिस वे द फोर्स अप्लाइड बाय अस इज, its magnitude is increased. This helps, this makes our work easier. जो घड़ी की वॉच की जो हैंड्स हैं वो इसके साथ अटैच्ड होते हैं. When these gears move, तो उसके साथ ही जो हैंड्स हैं वॉच में, जहाँ हमारे क्लॉक में, वो मूव करते हैं. So this is also another example of wheel and axle. Okay. And next comes the inclined plane. It is a sloping surface which helps to carry heavy loads to higher point, from the lower point, or from lower point to higher point and higher point to lower point. नीचे से ऊपर लोड लेके जाने के लिए जो स्लोपिंग सरफेस है, we call it inclined plane. So how does it help? It helps by increasing the magnitude. It makes our work easier. Have you ever seen where do we use this inclined plane or sloping surface? Give examples. Yes, Monish, unmute yourself. Yes, beta Monish. Yes. Have you ever seen inclined plane in the school, at home? कभी आपने Yes. देखा ऐसा sloping surface? Give examples. Yes, ma'am, home. मैम जब हम नीचे उतरते हैं तब स्लाइड होता है. Very good. Okay. जो हमारे घर के बाहर, गेट के बाहर sloping surface होता है, which helps to carry the vehicles inside the house. जो अपनी कार वगैरह अगर हमने उठा के रखनी हो रोड से घर पे, तो इट्स नॉट पॉसिबल ना, वी कैन नॉट पिक. बट वो स्लाइडिंग होता है सरफेस, तो वी कैन इजीली कैरी आवर व्हीकल्स इनसाइड द हाउस. और पर मैम भानवी को डाउट है कोई. किसको?
भानवी। हाँ जी मानवी बेटा पूछिए। मैम भानवी भानवी। भानवी हाँ जी बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम जो आपने कहा कि मैम पुली मशीन्स, मैम उस पुली मशीन्स में मैम अलमीरा को हम ले सकते हैं? पुली अलमीरा में कहाँ लगी होती है? यू हैव टू फाइंड आउट के कहाँ यूज होती है। मैम हैंडल से हम खींचते हैं ना मैम उसको। नहीं वो पुली नहीं होगी। ओके वो हमारा एफर्ट तो लग रहा है वहां पे। देन यू हैव टू फाइंड आउट के वेयर वर्क इज डन एंड वेयर सपोर्ट इज देयर। यस वो सेकंड क्लास में आ जाएगा। लोड इज इन द सेंटर आई थिंक सो। क्लियर? ओके मैम। टू सी के वो Yes. टर्न किस पॉइंट पे हो रही है अलमीरा, एंड यू हैव टू सी कि हम एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं। क्लियर? यस। नाउ गिव another example of inclined plane. Have you seen it in the school, in the hospitals? हमारे स्कूल मैम में यस। यस जो रैंप है हमारे स्कूल में, that is also example of inclined plane. तो inclined plane ट्रक में हम लोड करते हैं अनलोड करते हैं हैवी ड्रम्स और व्हीकल्स, समटाइम्स कार्स को लेके जाते हैं ट्रक्स में लोड करके। तो जो वहां पे यस वुडन प्लैंक रखते हैं, that is also the example of inclined plane. Okay, so it is also present in the hospitals. So in hospitals it is easy to carry the stretchers or wheelchairs inside. Clear? और जो upstairs लेके जाना होता है, it's not easy to carry the stretchers if we are going through the stairs. तो stairs पे इसको लेके जाना बहुत मुश्किल है. We cannot do that. So inclined surface helps us. So inclined surface is also, inclined plane is also an example of simple machines which makes our work easy. Clear? And next is screw. Screw is same like that of nail but having grooves on it. इसके ऊपर grooves होती हैं which turn around. जो turn होती हैं, जो grooves होती हैं, we call it thread. इसको हम thread भी कहते हैं. It जो आपको जो दिख रहा है, this is screw jack. It helps to lift the heavy vehicles. अब बड़ा ट्रक है, कार है, उसका टायर चेंज करना है, तो यू पुट इट अंडर दैट व्हीकल. व्हेन यू रोटेट इट, it helps to lift the car and we can easily change the vehicle, tire of the vehicle. Okay, so this is the example of screw. It's another example of screw, the revolving stools and revolving chair. इसमें भी screw लगा होता है. Now you can find screw in your pencil box also. जो पेन का कैप आप घुमा के जिसको आप उसको कैप लगाते हो, that is example of the screw. तो ये आपको जो दिख रहा है कैप जिसको हम ऐसे घुमा के खोलते हैं, बॉटल कैप, तो this is also example of screw जिसका लिड हम घुमा के लगाते हैं. अगर आप सीधा लग जाता है आपका कैप, उसमें स्क्रू नहीं है, बट जो घुमा के चीज आप उसको फिट करते हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ द स्क्रू. क्लियर? एंड इन द नेक्स्ट मंडे you will show me. Okay, you have a screw with you, lever and any simple machine that you can have. कि आपको पता है, क्लियर है कि दिस इज सिंपल मशीन. यस बेटा. हाँ जी. यस यू वांट टू से समथिंग, बट आई थिंक योर नेटवर्क इशू इज देयर. एंड द नेक्स्ट. एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटा. मैम हम जो स्क्रू वाले, मैम स्क्रू में मशीन्स में मैम नेल कटर ले सकते हैं? नेल कटर लीवर में आएगा. ओके. और वेज में उसका जो आगे वाला पार्ट है वो वेज में आएगा. अब अभी जो हम करने जा रहे हैं वेज.
बेटा इस नेटवर्क प्रॉब्लम you are not audible. Okay, next is the wedge. Wedge works on the principle of inclined plane. इसमें देखो inclined plane means आप अगर ध्यान से देखोगे जो triangular part है इसका, वहां पे आपको दिख रहा है कि अब यहाँ पे दो sloping surface है, दो inclined plane दिख रहे हैं ना आपको. So wedge is also based on the principle of inclined plane और ये cutting के काम आता है. It cuts the things, apart the things. उसके दो पार्ट करने में हेल्प करता है. लाइक नाइफ इज देयर, आप वेजिटेबल्स काटते हो ना, तो अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे इट इज मेड बाय ज्वाइनिंग टू इंक्लाइंड प्लेन्स. अब दोनों साइड स्लोपिंग सरफेस है तो इट मींस कि दो स्लोपिंग सरफेसेस को ज्वाइन करके बनाया गया. इसका एक पार्ट, एक जो इसका एंड है वो शार्प होता है, सेकंड एंड ब्लंट होता है. जो ऊपर वाला एंड है वो ब्लंट है, नीचे शार्प एंड है, और जो शार्प एंड है इट इज यूज्ड टू कट द थिंग्स. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेज. वेज दो चीजों को, ए पार्ट मींस दो हिस्सों में बांट देता है, कटिंग करता है. द एग्जांपल, कैन यू राइट द एग्जांपल? Yes, can you write the example of the wedge? One I have told, that is knife. Another example, write in the chat box or you can unmute yourself. Yes, Gurveer, turn your video on, unmute yourself. And 2 minutes or more, you have to, you can tell me the examples, and after that if any query is there, so you can ask me.